اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقصود خود شناسی، انانیت۔ یہ بات اس شخص کے لیے ہے جو اس بات کا محتاج ہو کہ بات کہی جائے تو اسے سمجھ آئے، لیکن جو شخص بات سنے بغیر ہی سمجھ جائے اسے بات کی حاجت نہیں۔ جس شخص کو ادراک ہو اس کے نزدیک سارے آسمان اور زمین ایک بات ہی تو ہیں اور بات ہی سے پیدا ہوئے ہیں۔ کن فیکون، سورہ یاسین۔ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ پس وہ شخص جو نہایت دھیمی آواز سے سن لیتا ہے، اس کے سامنے شور اور بلند آواز کی کیا ضرورت ہے؟ عربی زبان میں شعر کہنے والا ایک شاعر ایک بادشاہ کے پاس آیا۔ وہ بادشاہ ترک تھا، عربی زبان کجا، وہ فارسی بھی نہ جانتا تھا۔ شاعر عربی زبان میں اس کے لیے شعر کہہ کر لایا۔ جب بادشاہ تخت پر جلوہ افروز ہوا اور اہل دیوان امراء وزراء اپنے اپنے مرتبہ کے مطابق بیٹھ گئے تو شاعر کھڑا ہوا اور شعر پڑھنے شروع کیے۔ شعروں کے ان مقامات پر جہاں کے تحسین و داد دی جانی چاہیے تھی بادشاہ سر ہلاتا، اور حیرانی اور تعجب کے مقامات پر وہ ششدر نظر آتا۔ جہاں اور فروتنی کا موقع ہوتا وہاں التفات کرتا۔ تمام درباری حیران رہ گئے کہ ہمارا بادشاہ تو عربی زبان کا ایک لفظ تک نہیں جانتا، پھر مجلس میں وہ عین مناسب موقع پر وہ کیسے سر ہلانے لگا؟ شاید وہ عربی زبان جانتا ہے اور اس نے یہ بات کئی سال ہم سے چھپائے رکھی، اور اگر ہم عربی زبان میں باہم باتیں کرتے وقت اس کی بے ادبیوں کے مرتکب ہوئے ہوں تو ہم پر ہزار افسوس۔ بادشاہ کا ایک خاص غلام تھا۔ تمام درباری جمع ہوئے اور اسے بہت سے گھوڑے، اونٹ اور اموال دیے کہ وہ پتہ لگا کر بتائے بادشاہ عربی جانتا ہے یا نہیں، اور اگر وہ عربی نہیں جانتا تو موقع کے مطابق کیسے سر ہلاتا رہا؟ یہ کوئی کرامت تھی یا الہام؟ ایک دن شکار کے وقت بادشاہ بہت خوش تھا۔ غلام کو موقع مل گیا۔ بادشاہ نے بہت سا شکار مار لیا تو غلام نے بات چھیڑ دی۔ بادشاہ بہت ہنسا اور بولا، خدا کی قسم میں عربی نہیں جانتا، لیکن میں نے مناسب موقع پر جو سر ہلایا وہ یوں تھا کہ میں جان لیتا تھا کہ اس شعر سے کیا مقصد ہے۔ مقصد سمجھ لینے پر میں سر ہلا دیتا اور تحسین و آفرین کرتا تھا۔ پس معلوم ہوا کہ اصل چیز مقصود ہے۔ وہ شعر اس مقصود کی فرع ہے۔ اگر مقصود نہ ہوتا تو شعر نہ کہا جاتا۔ پس اگر مقصود پر نظر کریں تو دوئی نہیں رہتی، دوئی فرع میں ہے، اصل ایک ہی ہے۔ اسی طرح اگرچہ صورت کے اعتبار سے مشائخ رنگ رنگ کے ہیں، ان کے مقام اور حال و احوال ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، لیکن مقصود کے لحاظ سے ایک ہی چیز ہے، اور وہ خدا کی طلب ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس دنیا میں ہوا چلتی ہے تو قلین کا گوشہ اس سے ہلتا ہے، کمبل اس طرح ہلتے ہیں کہ انہیں انتہائی اضطراب ہے۔ خس و خشاک کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے، پانی کے حوض میں لہریں پیدا کر دیتی ہے، درختوں، شاخوں اور پتوں کو ہوا رقص میں لے آتی ہے۔ یہ تمام احوال ایک دوسرے سے گوناگوں اختلاف رکھتے ہیں، لیکن مقصود اصلیت اور حقیقت کے لحاظ سے یہ ایک ہی چیز ہے کہ ان سب کی جنبش ایک ہی ہوا سے ہے۔ کیا ہم قصوروار ہیں؟ فرمایا، جس کسی کو یہ فکر ہو اور جو اپنے آپ سے ناراض ہو کہ میں کیا ہوں اور میں ایسی حرکتیں کیوں کرتا ہوں، تو یہ دوستی اور عنایت کی دلیل ہے۔ محبت باقی رہتی ہے، عتاب باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہ عتاب ہمیشہ دوستوں پر کرتے ہیں، بیگانوں پر عتاب نہیں کرتے۔ اب عتاب بھی متفاوت ہے۔ اگر کسی پر عتاب کیا جائے اور پھر اس کی خبرگیری اور غمخواری کی جائے تو یہ عتاب عنایت اور محبت کی دلیل ہے، اور ایسا عتاب روا ہے۔ اور اگر کسی سے خفگی کا اظہار کیا جائے مگر اس کی غمخواری نہ کی جائے تو ایسا عتاب محبت کی دلیل نہیں۔ غلیچہ کو لکڑی سے پیٹتے ہیں تاکہ اس میں سے مٹی اور گرد جڑ جائے۔ اس مار پیٹ کو عقل مند لوگ عتاب نہیں کہتے، لیکن اپنے بیٹے یا اپنے محبوب کو پیٹا جائے تو یہ عتاب کہلائے گا۔ یہی وہ صورت ہوگی جس میں عتاب محبت کی دلیل ہوگا۔
बस जब तू अपने आप को शर्मिंदा और पशेमान देखे, ये सच्ची दोस्ती और इनायत की दलील है। और अगर तू अपने भाई में कोई ऐब देखे तो वो ऐब तेरे भाई का ऐब नहीं बल्कि तेरा ऐब है। दुनिया आईना की मिसाल है, इसमें तुझे अपना ही अक्स नजर आता है। अल मोमिन मिरातुल मोमिन, बुखारी। मोमिन मोमिन का आईना होता है। इस ऐब को अपने आप से जुदा कर दे, क्योंकि तू उससे नाराज होता है तो गोया अपने आप से नाराज होता है। कहा, एक हाथी को पानी पिलाने के लिए पानी के चश्मा पर लाए। पानी में अपना अक्स देखा तो हाथी भागने लगा। वो ये समझा कि किसी दूसरे हाथी से वो दूर भाग रहा है। उसे ये समझ ना आई कि वो खुद अपने आप से भागा है। जुल्म, बुग़्ज़, हसद, हिर्स, बेरहमी और गुरूर से पैदाशुदा तेरी बदअखलाकी तुझे तकलीफ नहीं देती। जब यही कुछ तू दूसरे में देखता है तो भागता है और तुझे तकलीफ होती है। आदमी को अपने चेहरा के बदनुमा कील और मुहासे बुरे नहीं लगते। वो अपने जख्मी हाथ को बेतकल्लुफ आश में डालता है और अपनी उंगली को चाटने लगता है। अपनी इस हरकत से वो नाराज नहीं होता। यही कील मुहासे बिल्कुल थोड़ी मिकदार में या इससे आधा जख्म भी वो अगर किसी दूसरे के चेहरे पर देखे तो उसे सख्त नागवार होता है और उसे नफरत होती है। इसी तरह कील मुहासों जैसी मकरूह बदअखलाकी अपने आप में हो तो बुरी नहीं लगती और उसे नफरत नहीं होती। इसका थोड़ा सा हिस्सा भी दूसरे में नजर आ जाए तो वो बेहद बुरा लगता है और आदमी बेजार हो जाता है। जिस तरह तू इससे भागता है इसी तरह इसे भी माजूर समझ। अगर वो तुझसे भागे और उसे तुझसे तकलीफ हो तो तेरी तकलीफ ही उसका उज़्र है, क्योंकि तुझे उसको देखने से हुई थी। वो भी तो देखता है, उसे तुझको देखकर बेजारी होती है। अल मोमिन मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। ये नहीं कहा अल काफिर मिरातुल काफिर कि काफिर काफिर का आईना है, क्योंकि काफिर इस वजह से काफिर नहीं कि उसके पास आईना नहीं, बल्कि वो इसलिए काफिर है कि उसे अपने आईने की खबर नहीं। एक बादशाह रंजीदगी के हालत में नदी के किनारे बैठा था। उमरा उससे बेहद खाइफ और तरसा थे। बादशाह की तबीयत किसी तरह खुश ना होती थी। एक मस्खरा उसका बड़ा मुकर्रिब था। उमरा ने उसकी तरफ रुजू किया कि अगर तू बादशाह को हंसा दे तो तुझे ये कुछ देंगे। मस्खरा बादशाह के करीब आया और बेइंतहा कोशिश की, मगर बादशाह ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। अगर बादशाह एक नजर भी देख लेता तो मस्खरा मूजिका खेज शक्ल बनाकर उसे हंसा देता। मस्खरा ने पानी में झांका तो भी बादशाह ने सर ना उठाया। आखिर मस्खरा ने कहा, बादशाह सलामत, पानी में आपको क्या नजर आ रहा है? बादशाह बोला, मैं एक दयूस को देख रहा हूं। मस्खरा ने जवाब दिया, जहां पना आपका ये गुलाम भी अंधा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तू उसमें कोई बात देखता है जो तुझे तकलीफ देती है तो आखिर वो भी अंधा नहीं है। वो सब कुछ देखता है जो तू देखता है। उसके सामने दो अना मैं की गुंजाइश नहीं। तू अना कहता है और वो भी अना कहता है। या तू उसके सामने मर जाए या वो तेरे सामने मर जाए, ताकि दुई ना रहे। लेकिन ये कि वो मर जाए इसका इम्कान नहीं, ना जाहिर में ना बातिन में। हुवल हय्युल लज़ी ला यमूत, वो जिंदा है, वो कभी नहीं मरता। उसमें ये खूबी है कि अगर मुमकिन होता तो तेरी खातिर वो जरूर मर जाता, ताकि इसके और तेरे दरमियान से दुई उठ जाती। अब जबकि उसका मरना मुमकिन नहीं, तू मर जा ताकि वो तुझ पर अपनी तजल्ली डाले और दरमियान से दुई उठ जाए। दो परिंदों को जिनसियत के वजूद से बाहम बांध दिया जाए तो दोनों के दो पर मिलकर चार पर हो जाएंगे, लेकिन इस तरह वो उड़ नहीं सकते क्योंकि दुई कायम है। लेकिन अगर एक जिंदा परिंदा से दूसरा मरा हुआ बांध दिया जाए तो वो जिंदा परिंदा उसे भी ले उड़ेगा, क्योंकि दुई बाकी न रही। आफताब को ये खूबी हासिल है कि वो चमगादड़ की खातिर मर जाए। चूंकि ये मुमकिन नहीं, इसलिए वो कहता है, ऐ चमगादड़, मेरा लुत्फ़ कर्म सब पर है। मैं चाहता हूं कि तुझ पर भी एहसान करूं। तू मर जा, क्योंकि मर जाना तेरे लिए मुमकिन है, ताकि तू मेरे जलाल के नूर से बहरामंद हो, खफाशी से तू बाहर आए और काफे कुर्ब का अनका बन जाए। खुदा के बंदों में से एक बंदा को ये कुदरत हुई कि उसने अपने आप को दोस्त की खातिर फना कर दिया। वो इस तरह हुआ कि उस बंदे ने खुदा से उस दोस्त को मांगा। खुदा ने उसकी दरख्वास्त कबूल न की।
निदा आई कि मैं इसे नहीं चाहता कि तू देखे। खुदा के इस बंदे ने अल्लाह जारी की और बराबर इल्तिजा करता रहा कि ऐ खुदा, तूने उसकी जो ख्वाहिश मेरे दिल में पैदा करती है वो किसी तरह मुझसे छूटती नहीं। वो गिरिया जारी करता रहा। आखिर बारगाह इज़्ज़ी से निदा आई, अगर तू चाहता है कि तेरी ये ख्वाहिश जरूर पूरी हो तो अपना सर फिदा कर और अपने आप को मिटा दे और बाकी ना रह और इस दुनिया से गुजर जा। उस बंदा खुदा ने कहा, ऐ खुदा, मैं इस पर राजी हूं। चुनाचे उसने यही किया, अपने दोस्त की खातिर अपना सर दे दिया ताकि उसका काम बन जाए। जब एक बंदे में ये खूबी हो सकती है कि वो अपनी ऐसी उम्र को, जिसका एक दिन तमाम दुनिया की अव्वल से लेकर आखिर तक उम्र के बराबर है, फिदा कर दे, तो क्या वो खुदा जो हर एहसान और लुत्फ करम का मंबा है ऐसे नहीं करेगा? लेकिन याद रख कि इसके लिए फना मुमकिन नहीं, बस तू ही फना हो। औलिया का कलाम। सुकैली आया और एक बुजुर्ग से ऊपर बैठ गया। फरमाया, इससे उनमें क्या फर्क आ गया? ये ऊपर हो या नीचे, चिराग हैं। अगर चिराग ऊंचाई तलब करे तो वो अपनी जात के लिए ऊंचाई नहीं चाहता। उससे उसकी गर्ज ये होगी कि दूसरों को इससे ज्यादा फायदा पहुंचे और लोग उसके नूर से फायदा उठाएं। वरना चिराग हर हालत में चिराग ही है। उसे ऊंची जगह पर रख दो या नीची जगह पर, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर वो ऐसा चिराग है जो आफताबे अबदी है। ये आफताबे अबदी अगर जाहो बुलंदी के तलबगार हों तो उनकी गर्ज कतन ये होती है कि अवाम में इतनी बसीरत नहीं होती कि उनका बुलंद मुकाम उन्हें मालूम हो सके। इसलिए खुदा के ये बरगजीदा बंदे अहले दुनिया को दुनिया ही के जाल से शिकार करते हैं ताकि वो इस तरह बुलंदी हासिल करें और फिर आखिरत के फंदे में आ जाएं। इसी तरह हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और दीगर बिलाद इसलिए फतह नहीं किए थे कि उन्हें उनकी जरूरत थी। उन्होंने इन्हें महज इसलिए फतह किया कि उन्हें नई जिंदगी बख्शें, रोशनी और बसीरत दें। ये कफे दस्त तो अता बख्शिश की आदि है, लेकिन वो उसका आदि नहीं कि कबूल करे। वो खलकत से इसलिए फरेब करते हैं कि अता और बख्शिश करें, इसलिए नहीं कि किसी से कोई चीज लें। जो शख्स जाल बिछाकर परिंदों को धोखा देता है ताकि उन्हें पकड़कर खा जाए और बेच डाले, उसे मक्कार कहते हैं। लेकिन अगर एक बादशाह इस गर्ज से जाल बिछाता है कि वो इस बेशकीमत अजमी बाज को पकड़े जिसे अपनी खूबियों और ताकतों की खबर नहीं, और अपने हाथ से उसकी परवरिश करके उसे अपनी कलाई पर जगा दे ताकि उसका शर्फ बढ़े और वो मुअल्लमो मुअद्दब बन जाए, तो ये मकर नहीं, अगरचे बज़ाहिर मकर ही मालूम होता है। बादशाह का ये फेल ऐन रास्ती, अता और बख्शिश है। यूं समझो कि उसने मुर्दा जिंदा कर दिया, पत्थर को लाल बना दिया, मुर्दा आबे पुश्त को आदमी बना दिया। इससे भी बढ़कर ये होगा अगर बाज को इल्म हो कि उसे क्यों पकड़ रहे हैं, दाम और दाना का मोहताज ना हो और दिलो जान से वो दाम का जोया हो और बादशाह के हाथ पर परवाज करे। लोग बज़ाहिर इनकी बात की तरफ तवज्जो देते हैं और कहते हैं, हमने ये बातें बहुत सुनी हैं और हमारा अंदर इन बातों से तह बर तह भरा हुआ है। वो कहते हैं हमारे दिल गलाफों के अंदर महफूज है। ये नहीं, बल्कि खुदा ने उनके इनकार की पादाश में उन पर लानत कर रखी है। सूरह बकरा। काफिर कहते हैं हमारे दिल इस कबील की बातों के खिलाफ हैं और हम उनसे पुर हैं। खुदा ताला उनके जवाब में फरमाता है कि ये हरगिज इन बातों से पुर नहीं है। उनके अंदर वसवसा, शिर्क, शक और ख्याल फासिद से पुर हैं, बल्कि वो लानत से पुर हैं। बल्लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, बल्कि उनके इनकार पर खुदा की लानत है। काश के वो इन हज़ियानात से खाली होते, वो किसी काबिल ही होते कि उनकी पजीराई हो सकती। वो किसी काबिल भी तो नहीं। खुदा ताला ने उनके कान, आंख और दिल पर मोहर लगा दी है। यही वजह है कि उनकी आंख को रंग कुछ का कुछ दिखाई देता है, यूसुफ उनको भेड़िया नजर आता है, और उनके कान कुछ और ही सुनते हैं, धनाई और हिकमत को बेहूदगी और हज़ियान शुमार करते हैं। दिल की ये हालत है कि उनमें सवाए ख्याल फासिद और वसवसा के और कुछ नहीं आता। उनके दिल की हालत मौसम सरमा जैसी है कि ख्याल फासिद सर्दी के मारे तह तर तह एक दूसरे से चिमटे पड़े हैं। तकलीफ और सर्दी के मारे
वो जमा हो गए हैं। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम गिशावतन। सूरह बकरा। खुदा ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। इन बरगजीदा लोगों की बातों से उनका अंदर पुर होना तो एक तरफ, उनकी बू तक भी तो सारी उम्र उन्हें हासिल नहीं हुई। ना उन्हें जो उन पर फख्र करते हैं, ना उनके बाप दादा को। औलिया का कलाम कूजा की तरह है। बाज लोगों को खुदा ताला उसे यूं दिखाता है कि वो पानी से पुर मालूम होता है और वो उससे अपनी तिश्नगी मिटा लेते हैं। बाज लोगों को खुदा उसे खाली दिखाता है, चूंकि उन्हें वो उस कूजा को खाली दिखाता है। ये क्या शुक्रिया अदा करे? शुक्र तो वो करे जिसे पानी का कूजा भरा हुआ दिखाया जाए। खुदा ताला ने जब आदम को पानी और मिट्टी से बनाया, मैंने आदम की मिट्टी 40 दिन अपने हाथ से गूंदी तो उसका सारा जिस्म बनाकर कुछ अरसा उसे जमीन पर पड़ा रहने दिया। इब्लीस, उस पर खुदा की लानत हो, आया और उस जिस्म में घुस गया। वो उसकी एक एक रग में फिरा और उसे अच्छी तरह से देखा। खून से भरी हुई रगों और खलतों को देखा तो बोला, अजब नहीं है कि वो इब्लीस जो मैंने अर्श के सुतून में देखा पैदा होने लगा है। वो इब्लीस अगर इस दुनिया में है तो यही है। इंसान का ज़र्फ। अताबक का बेटा मौलाना के पास आया। मौलाना ने फरमाया, तेरा बाप हमेशा हक में मशगूल है, उसका इतिकाद गालिब है और उसकी बातों से मालूम हुआ है कि एक दिन रोम के काफिर कहते थे, हम बेटी तातारियों को दें ताकि हमारा और उनका दीन एक हो जाए और ये नया मजहब जिसे इस्लाम कहते हैं मिट जाए। मैंने कहा, यह दीन कैसे एक हो सकता है? दीन हमेशा 2-3 होते रहे हैं और उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा कायम रहा है। तुम दीन को एक कैसे कर सकोगे? दुनिया का एक ही मजहब तो वहीं होगा, यानी कयामत में। लेकिन ये जगह जिसे दुनिया कहते हैं यहां मुमकिन नहीं, क्योंकि यहां हर शख्स की मुराद और ख्वाहिश मुख्तलिफ है। यहां सबका एक होना मुमकिन नहीं। लेकिन कयामत को ये हो सकता है, क्योंकि सारी मखलूक खुदा एक जगह मौजूद होगी। सब के सब एक ही तरफ देखेंगे। यक गोश और यक जुबान होंगे। आदमी में कई चीजें हैं। चूहे और परिंदे को लीजिए। परिंदा पिंजरे को ऊपर ले जाता है और चूहा उसे नीचे की तरफ खींचता है। आदमी में 100,000 मुख्तलिफ जानवर हैं, लेकिन जब ये सब वहां जाएंगे जहां चूहा चूहा न रहेगा और परिंदा परिंदा न रहेगा, तो सब एक हो जाएंगे, क्योंकि मतलूब ना ऊपर है और ना नीचे। जब मतलूब जाहिर हो जाए, ना ऊपर रहा ना नीचे। एक शख्स की कोई चीज गुम हो गई, वो उसे कभी दाएं ढूंढता है, कभी बाएं तरफ। वो आगे देखता है, पीछे देखता है। जब वो चीज मिल गई तो ना वो ऊपर तलाश करता है ना नीचे, ना वो दाएं तरफ ढूंढता है ना बाईं तरफ, ना आगे तलाश करता है ना पीछे। बस उस रोज सब खल्के खुदा की नजर, जुबान, कान, होश एक हो जाएंगे। ये ऐसा ही है जैसे 10 आदमी एक बाग या दुकान की मलकियत में शरीक हो। उनकी बात एक होगी, उनका गम एक होगा, उनकी मसरूफियतें एक होंगी, क्योंकि उनका मतलूब एक है। उनकी हर चीज एक होगी। बस कयामत के दिन जब सबका वास्ता खुदा से पड़ेगा, ये सब एक हो जाएंगे। दुनिया में हर शख्स इन्हीं मानों में किसी न किसी काम में मशगूल है। कोई औरत की मोहब्बत में है, कोई माल की मोहब्बत में, कोई इक्तिसाब में है और कोई इल्म में। सबका एतकाद यह है कि मेरा इलाज, मेरा ज़ौक, मेरी खुशी, मेरी राहत इसी में है। और यही खुदा की रहमत है। जब उस जगह जाता है, तलाश करता है, मगर अपना इलाज और राहत नहीं पाता तो वापस लौटता है। कुछ अरसा इंतजार करता है और फिर कहता है, वो ज़ौक और रहमत जुस्तजू से हासिल होती है, मैंने पूरी जुस्तजू नहीं की। फिर तलाश करता हूं, फिर ढूंढता है, लेकिन फिर भी उसे गौहरे मकसूद हाथ नहीं आता। यहां तक कि किसी वक्त रहमत बेपर्दा होकर सामने आ जाती है। अब उसे समझ आती है कि जिस रास्ता पर वो चल रहा था वो सही न था। लेकिन खुदा ताला के ऐसे बंदे भी हैं कि कयामत से पहले ही देख लेते हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाह वजहो फरमाते हैं, जब हजरे अजसाद होगा और कयामत बर्पा हो जाएगी
हमारे यकीन में इजाफा ना होगा। इसकी मिसाल यूं है कि एक कौम अंधेरी रात में एक अंधेरे घर के अंदर नमाज पढ़ रही है। किसी का मुंह किसी तरफ है और किसी का किसी तरफ। जब सुबह की रोशनी नमूदार होगी तो सब के सब अपना मुंह एक ही तरफ फेर लेंगे, लेकिन उनमें से जिनके मुंह पहले ही किबला की तरफ थे, उस रात वो मुंह किधर फेरेंगे? बस जब सबने किबला की तरफ मुंह कर लिया तो उनका मुंह पहले ही किबला की तरफ था, बस उनका मुंह उसी तरफ और वो हर दूसरी तरफ से मुंह फेरे हुए हैं जहां तक उनका ताल्लुक है। कयामत उनके सामने मौजूद है और हाजिर है। बात तो खत्म होने वाली नहीं, लेकिन तालिबों के ज़र्फ के मुताबिक आया है कि कोई शय ऐसी नहीं जिसके खजाने हमारे यहाँ ना हों, लेकिन हम उसमें से एक मिकदार मुअय्यन के मुताबिक उतारते रहते हैं। सूरह हज्र। हिकमत बारिश की तरह है, यह अपनी कान में बे इंतहा है, लेकिन वो मसलहत के मुताबिक आती है। सरमा में, बहार में, गर्मा में, खिजा में मसलहत के मुताबिक ज्यादा या कम आती है, लेकिन जिस जगह से वो आती है वहां उसकी कोई हद नहीं होती। शक्कर को कागज में लपेटते हैं या अत्तार दवाइयों को कागज में बांधते हैं, लेकिन ये शक्कर सिर्फ उतनी ही नहीं होती जितनी के कागज में लपेटी गई। शक्कर की कानें और दवाओं की कानें बेहद हैं, उनका कोई शुमार नहीं। ये कागज में कैसे समा सकती हैं? बाज लोगों ने ताना दिया कि कुरान आयत आयत होकर क्यों नाजिल होती है, पूरी सूरत की सूरत क्यों नाजिल नहीं होती। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अहमक लोग क्या कहते हैं, अगर पूरी सूरत मुझ पर बैक वक्त नाजिल हो तो मैं गुदास हो जाऊं और बाकी न रहूं, क्योंकि वाकफियत रखने वाला आदमी थोड़े से बहुत ज्यादा समझ जाता है। एक चीज से बहुत सी चीजें हैं और एक सतर से किताबें। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि एक जमात बैठी है और एक हिकायत सुन रही है, लेकिन उनमें वो शख्स जो तमाम हाल जानता है और जो कुछ के वाकया हुआ वो एक इशारा ही से सब कुछ समझता है, उसका चेहरा कभी खौफ के मारे जर्द हो जाता है और कभी फरते जोश से सुर्ख हो जाता है। उसका हाल कभी कुछ होता है और कभी कुछ, लेकिन बाकी अहले मजलिस सिर्फ इतनी बात ही समझते हैं जितनी के उन्होंने सुन ली, क्योंकि वो पूरे हाल से वाकिफ नहीं। जो पूरे हाल से वाकिफ था उसने उनके मुकाबला में बहुत कुछ समझ लिया। अब हम असल मतलब की तरफ आते हैं। तू अतार के पास जाए तो उसके पास शक्कर बहुत है, लेकिन वो ये देखता है कि तू पैसे कितने लाया है। इन पैसों के मुताबिक वो तुझे शक्कर देता है। पैसे यहाँ हिम्मत और एतिकाद है। हिम्मत और एतिकाद के मुताबिक बात होती है। जब तू शक्कर खरीदने के लिए आता है तो देखते हैं कि तेरे कैसा में कितनी नकदी है। नकदी के मुताबिक पैमाना से शक्कर नाप कर देते हैं, एक पैमाना या दो पैमाने। लेकिन अगर तू शक्कर लादने के लिए ऊंटों की कितारें और नकदी के बेशुमार कैसे लाया है तो कहेंगे कि भाई बड़े पैमाने लाओ। इसी तरह बाज आदमियों को दरिया भी थोड़ा होता है और बाज आदमियों को चंद कतरे भी बहुत होते हैं, इससे ज्यादा उनके लिए मुजर होता है। यह बात सिर्फ आलिम मानी, इल्म और हिकमत ही में नहीं, हर चीज का यही हाल है। माल, जर, मुआवन बेहद और बेपाया है, लेकिन हर शख्स को उसके ज़र्फ के मुताबिक मिलता है, क्योंकि ज्यादा की वो ताप नहीं ला सकता और पागल हो जाता है। क्या तूने नहीं देखा कि आशिकों में से मजनू और फरहाद जो पहाड़ों और जंगलों में खाक छानते फिरे, फिर जब औरत के इश्क में उनकी शहवत उनकी ताकत से बढ़ गई तो वो अपने आप में न रहे। इसी तरह क्या तुझे मालूम नहीं कि फिरौन को जब मुल्क और माल ज्यादा दे दिया गया तो उसने खुदाई का दावा कर दिया, अच्छी और बुरी कोई चीज ऐसी नहीं जो हमारे पास और हमारे खजाना में बेहद और बेपाया ना हो, लेकिन हम हर चीज इंसान के ज़र्फ के मुताबिक उसे देते हैं, क्योंकि मसलहत इसी में है। हाँ, ये शख्स मोतकिद तो है, लेकिन वो अपने एतकाद को नहीं जानता। जैसे एक बच्चा रोटी का मोतकिद है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि वो किस चीज का मोतकिद है। ये ऐसा ही है जैसे नामियात में से दरख्त प्यास की वजह से जर्द और खुश्क हो जाता है, मगर वो नहीं जानता कि प्यास किसे कहते हैं। आदमी का वजूद एक झंडे की तरह है। झंडे को पहले हवा में लहराते हैं, इसके बाद खुदा हर तरफ से अक्ल, फहम, गुस्सा
गज़ब, हिल्म, करम, खौफ, उम्मीद और बेशुमार हालात और अनगिनत सिफात को बरोए कार लाकर लश्करों को उस झंडे के नीचे बेच देता है। जो शख्स भी इस सूरत हाल को दूर से देखता है उसे अकेला झंडा ही नजर आता है, लेकिन जो शख्स ज्यादा नजदीक आकर देखता है उसे झंडे के नीचे क्या क्या मोती और क्या क्या मानी नजर आते हैं। एक शख्स आया, मौलाना ने पूछा, तू कहाँ था? हम तेरे मुश्ताक थे, तू दूर क्यों रहा? बोला, इत्तिफाक ऐसा ही हो गया। फरमाया, हमने भी दुआ की थी कि ये इत्तिफाक दरमियान में पलट जाए और जायल हो जाए। वो इत्तिफाक जो हिज्र का बायस बनता है नाजेबा है। वल्लाह सब कुछ खुदा ही की तरफ से है, लेकिन खुदा से हर चीज की निस्बत नेक है, लेकिन हमसे नहीं। सच कहते हैं, खुदा से सब निस्बत नेक और बतमाम कमाल है, कमाल हमसे नहीं। जना, पाकबाजी, बेनमाजी नमाज, कुफ्र इस्लाम, शिरक तौहीद की खुदा से निस्बत नेक है, लेकिन हमसे जना, चोरी, कुफ्र, शिरक की निस्बत बद है। तौहीद, नमाज, खैरात की निस्बत नेक है। ये ऐसा ही है जैसे एक बादशाह के मुल्क में कैद खाना, फांसी का फंदा, खिलत, माल, इमलाक, हश्म, शादी, तिब्ल, इल्म, सभी कुछ होता है। बादशाह से इन सब चीजों की निस्बत नेक है। खिलत उसके मुल्क का कमाल है, फांसी का फंदा, कत्ल और कैद खाना भी उसके मुल्क का कमाल है, और उसके साथ इन सब की निस्बत कमाल है। लेकिन जहां तक रियाया का ताल्लुक है, खिलत और फांसी का फंदा कैसे एक हो सकते हैं? नमाज और ईमान। सवाल किया कि नमाज से फाजिल तर क्या है? इसका एक जवाब हमने ये दिया कि नमाज की जान नमाज़े मा तकरीरा से बेहतर है, और दूसरा जवाब ये है कि ईमान नमाज से बेहतर है, क्योंकि नमाज 5 वक्त फर्ज है और ईमान फर्ज से पैवस्त है, और नमाज माजूरी की हालत में साकित हो जाती है और तखीर की इजाजत होती है। और ईमान को नमाज पर दूसरी फजीलत ये है कि ईमान किसी माजूरी की वजह से साकित नहीं होता, फिर तखीर की भी इजाजत नहीं। ईमान बगैर नमाज के मनफत बख्श है, मगर ईमान के बगैर नमाज कोई फायदा नहीं देती। जैसे मुनाफिकों की नमाज, हर दीन में नमाज जुदा है, लेकिन ईमान किसी दीन में तब्दील नहीं होता, इसके अहवाल और इसका किबला तब्दील नहीं होता। और दूसरे फर्क हैं, सुनने वाले के ज़र्फ के मुताबिक ये फर्क जाहिर होते हैं। सुनने वाला खमीर कनिंदा के सामने आटे की तरह है, कलाम पानी की तरह है। आटे में सिर्फ इतना पानी डालते हैं जिससे वो ठीक हो जाए। तर्जुमा शेर, मेरी आंख दूसरे पर नहीं पड़ती, मैं क्या करूं अपने आप से गिला कर, क्योंकि इससे रोशनाई तू खुद है। यानी मैं क्या करूं, सुनने वाला सवाए तेरे किसी को तलाश नहीं करता, इसकी रोशनाई तू ही है, इस सबब से कि तू अपने आप ही में है। अपने आप से तूने रिहाई नहीं पाई। अगर तू अपने आप से रिहाई पा जाता तो तेरी रोशनाई लाख गुना हो जाती। हिकायत, एक शख्स बेहद कमजोर, बूढ़ा, हकीर था। वो एक चिड़िया की तरह बहुत ही हकीर था, इतना हकीर कि बड़ी बड़ी कबीह सूरतें भी उसे देखती तो खुदा का शुक्र अदा करती कि वो इससे तो बहुत बेहतर हैं। उसे देखने से पहले उन्हें शक ही होता कि कोई इनसे बढ़कर कैसे हो सकता है। बाई हमा बादशाह के दीवान में वजीर के सामने वो बड़ी बड़ी गप्पे हाँकता और दुरुस्त जुबानी करता। वजीर को इससे बहुत तकलीफ होती और वो बड़े तहम्मुल से काम लेता, यहाँ तक कि एक दिन वजीर बहुत गुस्से हुआ और बुलंद आवाज से बोला कि ऐ अहले दीवान, फला आदमी को मैंने खाक से उठाया, उसकी परवरिश की, किस्म किस्म के खाने और नेमतें उसे खिलाई, और ये किसी काबिल हुआ, और यहाँ तक कि इसकी रसाई हुई, और मुझे ही ये वाही तबाही बातें कह रहा है। वो हकीर तरीन आदमी उछलकर वजीर के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, ऐ दीवानों, अकाबर दौलतो अरकान, ये दुरुस्त कह रहा है। इसके और इसके बाप दादा के टुकड़ों पर मैं पला और बड़ा हूँ। नतीजा यह है कि आज मैं इस हकीर और रुस्वा हालत में हूँ। अगर मैंने किसी दूसरे आदमी के नानो नेमत पर परवरिश पाई होती तो हो सकता था कि मेरी सूरत, मेरा कद
اور میری قیمت اس سے بہت زیادہ ہوتی۔ اس نے مجھے خاک سے اٹھایا، بے شک میں یہی کہتا ہوں کاش میں مٹی ہی رہتا۔ سورہ نبا۔ اور اگر کسی دوسرے آدمی نے مجھے خاک سے اٹھایا ہوتا تو یوں میرا مضحکہ نہ اٹھتا۔ اب جو مرید کسی مرد حق سے پرورش پاتا ہے اس کی روح پاک اور مطہر ہوتی ہے، اور جو شخص کسی جھوٹے، مکار اور فریبی کے ہاتھوں پرورش پاتا ہے اس سے علم سیکھتا ہے، اس حقیر بوڑھے، عاجز و غمگین اور کم حواس آدمی کی طرح ہوتا ہے۔ کافروں کے دوست شیاطین ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں لاتے رہتے ہیں۔ سورہ بقر۔ دراصل آدمی کی سرشت میں تمام علوم کا خمیر موجود ہے۔ اس کی روح غیب کی چیزیں دکھاتی ہے، جیسا کہ صاف پانی کے نیچے جو سنگریزے اور مٹی ہو نظر آ جاتی ہے، اور جو کچھ پانی کے اوپر ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ اس صاف پانی کا عکس خدا تعالیٰ نے اس موتی پر ڈال دیا ہے، بغیر کسی علاج کے اور بغیر کسی تعلیم کے۔ لیکن جب اس صاف پانی میں مٹی مل جائے یا اس میں دوسرے رنگوں کی آمیزش ہو جائے تو اس کی وہ خاصیت، وہ دانش اس سے جدا ہو جاتی ہے اور وہ بھول جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء کو بھیجا، وہ بہت بڑے صاف پانی کی طرح تھے۔ ہر حقیر، رنگین اور گدلا پانی جو اس میں آ کر ملا اسے اپنی تیرگی اور عارضی رنگ سے رہائی مل گئی۔ بس جب وہ اپنے آپ کو صاف دیکھتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ میں پہلے اسی طرح صاف اور نتھرا ہوا تھا، اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کی تیرگی اور رنگ عارضی ہے۔ اسے اپنی وہ حالت یاد آ جاتی ہے جو اس کے ان عوارض کے لاحق ہونے سے پہلے تھی، اور وہ کہہ اٹھتا ہے یہ وہی ہے جو اس سے قبل ہمیں رزق مل چکا ہے۔ سورہ بقر۔ پس انبیاء اور اولیاء پہلی حالت یاد دلانے والے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ اس کے جوہر میں کوئی چیز ملا دیتے ہیں۔ اب ہر گدلا پانی جس نے کہ بڑے اور صاف پانی کو پہچان لیا کہ میں اس میں سے ہوں اور اسی کا ہوں، اس میں مل گیا، اور جس گدلے پانی نے بڑے پانی کو نہ پہچانا اور اسے غیر جنس سمجھا، اور جس نے دوسرے رنگوں اور تیرگیوں میں پناہ لی، وہ سمندر اسے نہیں مل سکتا، سمندر اس سے دور ہی رہتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے جس روح نے اس سے ممانست کی وہ اس سے مل گئی، اور جس نے اس سے بیگانگی اختیار کی وہ الگ ہو گئی۔ صحیح بخاری۔ اور اس نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے آیا۔ سورہ توبہ۔ یعنی بڑا پانی چھوٹے پانی کی جنس سے ہے، اس کے نفس سے اور اس کی اصل سے ہے، اور جو پانی اسے اپنے نفس سے خیال نہیں کرتا تو اس کا یہ انکار نفس آپ سے نہیں، وہ بد دوست کی وجہ سے ہے۔ اس بد دوست کا عکس اس پانی پر پڑتا ہے، اور چھوٹا پانی نہیں جانتا کہ بڑے پانی اور سمندر سے میرا دور بھاگنا میرے نفس کی وجہ سے ہے، یا اس بد ہم نشین کے عکس کی وجہ سے جس سے اس کا بہت میل ملاپ ہے۔ جیسا کہ مٹی کھانے والا نہیں جانتا کہ مٹی کی طرف میرا میلان میری طبیعت کا تقاضا ہے، یا اس کی وجہ کوئی بیماری ہے جو میری طبیعت سے مل گئی ہے۔ سمجھ لے کہ ہر شعر، حدیث یا آیت جسے شہادت کے طور پر لاتے ہیں دو شاہدوں اور دو گواہوں کی طرح ہے۔ گواہی کے اصول سے واقف گواہ ہر مقام کے مناسب حال مختلف گواہیاں دیتے ہیں۔ گواہ دو ہی ہوتے ہیں، وہی وقف خانہ کے گواہ، وہی بیع دکان کے گواہ، وہی نکاح کے گواہ ہوتے ہیں۔ جس جھگڑے کے وقت بھی وہ موجود ہوں اس کے مطابق گواہی دیتے ہیں۔ گواہوں کی صورت وہی ہے مگر مفہوم مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اور آپ کے حق میں الحرم کی رنگینی اور مشک کی مہک کو نفع مند بنائے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔